जैसा कि यूहन्ना अध्याय 8 में लिखा है, सो यदि पुत्र प्रभु यीशु मसीह तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इसी वचन के द्वारा इस भाई ने नशे से आज़ादी पाई। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਫੁੱਲੜੀਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਆ। ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਗਿਆ ਛੱਪੜ 'ਤੇ ਜੀ। ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੰਬਾਕੂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੰਬਾਕੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਨਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਆਹ ਲੈ ਫੜ ਲੈ ਲਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਾਉਣ ਹੀ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਦੋ ਵਾਰੀ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਸ ਪੈ ਗਿਆ ਨਸ਼ੇ ਦਾ। ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਭੁੱਕੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਡੋਡੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੀ ਲੈਣੀ। ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਦਾ ਭੱਜਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਤਲਬ ਵੱਧ ਗਈ। ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਲਬ ਲੱਗਣੀ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸੌਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਲਬ ਲੱਗਣੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭੌਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੀ ਕੇ ਘਰ ਵੜਨਾ ਆਪਣੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕੱਪ ਮੈਂ ਡੋਡਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ 1 ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ 4-5 ਕੈਪਸੂਲ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਣਾ ਭੱਜਣਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰੀਏ ਕਰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫੀਲ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਝੁੰਚਣੀ ਆਉਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਲਬ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਪਾਊਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਾਊਂਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਬਰੇ ਚਰਚ ਇਹਨੂੰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਜੀ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਂਬਰੇ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਂਬਰੇ ਚਰਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਬਰੇ ਚਰਚ ਆਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਖਾਂਬਰੇ ਚਰਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਊਂਗਾ। ਫਿਰ 12 ਤਰੀਕ 10ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 2017 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ, जिनमें नशे की आत्मा अपने सिर पे हाथ रखो और नशे की आत्मा यीशु मसीह के नाम में आपको छोड़ के चली जाए। मांगो ऊंची आवाज में। नशे की आत्माएं आपको छोड़ के चली जाएं। अगर आपका आमीन ऊंचा तो ये आप हैं। मैं डिक्लेयर करता हूं आपको फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਹਟ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਘਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਆਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੇਰਾ ਡੋਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੰਬਾਕੂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਬਰੇ ਚਰਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿਓ,
ਔਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। जैसे कि पहला शमूएल 1:17 में लिखा है, एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। यह वचन इनके जीवन में पूरा हुआ। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रेनू है, मैं जलंधर कैंट की रहने वाली हूँ। आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। अक्टूबर 2012 में मेरी शादी हुई। फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए। सबसे पहले दुष्ट आत्मा ने मुझ पे सपनों के जरिए अटैक करने शुरू किए। जब मैं सोती थी तो मुझे रात को मुर्दा लोग दिखाई देते थे, कभी मेरे बेटे के रूप में तो कभी मेरे हस्बैंड के रूप में। जब मैं एक बार डर के अचानक उठती थी, इधर उधर देखती थी तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आता था और मैं बहुत डर जाती थी। फिर मैं दोबारा सो जाती थी। जब कभी मेरा मन करता था कि मैं अपने हस्बैंड को जगाऊं और उनको बताऊं, पर मैं ऐसा नहीं कर पाती थी क्योंकि मैं सोचती थी जब उठ के देखती थी तो मेरे को कुछ नजर नहीं आता था। जब मैं सोती थी तो सपने में मुझे सांप नजर आते थे और ऐसे लगता था कि वो मेरे ऊपर रेंग रहे हैं और मुझे टच करेंगे और मुझे बहुत मतलब कि उनसे डर लगता था बहुत ज्यादा। और जब मैं सुबह उठती थी तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती थी, बहुत मायूसी महसूस करती थी मैं सुबह। और मेरे को बहुत डर लगता था कि जब रात होगी मेरे को फिर से वही अटैक होंगे। फिर मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती थी। कई बार मेरे हस्बैंड मुझे पूछते थे भी तू ऐसे रहती है, फिर मैं उनको बताती थी, फिर वो यकीन नहीं करते थे। वो कहते थे भी तू शायद तू इस बारे में ज्यादा सोचती है तब करके तेरे साथ ऐसे नजर आता है, तू इस चीज के लिए सोचना ही छोड़ दे। ऐसे ही मुझ पर से दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ते जा रहे थे। और जब तब मैं 2017 में प्रेग्नेंट हुई, जब मुझे 1.5 मंथ प्रेगनेंसी कंप्लीट हुई तो उसके बाद मुझे सपने में दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ। तो अटैक के जरिए मुझे किसी लेडीज का मिसकैरेज नजर आया सपने में। और जब मैं सुबह उठी तो मेरी एकदम से ब्लीडिंग शुरू हो गई। जब मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हुई तो मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने बताया कि आपकी वाइफ का मिसकैरेज हो गया। जब मेरा मिसकैरेज हुआ तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि हमारे साथ ऐसे हो गया, तो मैं बहुत ज़्यादा रोई और मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान हुए और फैमिली मेम्बर्स भी बड़ा परेशान हुए। और फिर मुझे समझाने लगे। फर्स्ट मिसकैरेज के बाद मैं 5-6 मंथ बाद फिर से प्रेग्नेंट हुई और फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। जब मेरी प्रेगनेंसी सही चल रही थी वैसे ही उसी रीति से उसी तरह शैतान ने फिर से मुझ पे अटैक किया और फिर से मेरा मिसकैरेज हो गया। जब मेरा दूसरी बार भी मिसकैरेज हो गया तो हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे और मैं सोचती थी कि अब मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो गई थी और बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। और मैं अपने हस्बैंड से बोलती थी कि मेरा जो पूरी बॉडी का टेस्ट होता है, जो लेडीज़ का पूरी बॉडी का टेस्ट होता है, मेरा वो टेस्ट करवाओ। और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी अब 2 मिसकैरेज के बाद। और इसी तरह लगभग मेरे 3 मिसकैरेज हो गए और फिर मैंने आस ही छोड़ दी कि अब मैं कभी माँ भी बन पाऊंगी। बार बार मिसकैरेज होने की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी और मेरे मायूस रहती थी और चुप चुप रहती थी। और मेरे हस्बैंड बस मुझे समझाते रहते थे भी कोई बात नहीं। 3 मिसकैरेज होने के बाद भी मेरा भरोसा परमेश्वर के वचनों पर था। जैसे कि बाइबल के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हन्ना की, एलिशबा की और सारा की सुधि ली। मुझे भी परमेश्वर के वचनों पर पूरा विश्वास था कि वो मेरी भी प्रार्थना को सुनेगा और मेरी भी शर्मिंदगी को दूर करेगा। मैं काफ़ी लंबे समय से खामरा चर्च से जुड़ी हुई थी और मैं बहुत सी बहनों को बच्चे की गवाही को देते हुए सुना था और मुझे उनकी गवाहियाँ देकर बहुत ज़्यादा विश्वास होता था। और मैं मन में यही रिसीव करती थी कि परमेश्वर जरूर एक ना एक दिन मुझे भी बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेगा। उसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने अंकुर नरुला मिनिस्ट्री में ले हैंड करवाने के लिए फॉर्म फिल किया। 28 अक्टूबर 2021 जब मैं और मेरे हस्बैंड खामरा चर्च आए और जब परमेश्वर के दास ने मुझ पर ले हैंड प्रार्थना की और अपना सामर्थी हाथ मेरे माथे पर रखा और मुझे बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस हुई।
उस लेहन प्रार्थना के बाद जब मैंने घर जाके मैंने अपने आप को चेक किया और मैं सोई और मैं दुष्ट आत्मा के अटैक से पूरी तरह से आज़ाद हो चुकी थी। उसके बाद मुझे कोई सपना नहीं आया, कोई मुर्दा लोग नहीं दिखाई दिए, कोई सांप नहीं दिखाई दिए। लेहन प्रार्थना के बाद जब मैंने अगली नेक्स्ट मंथ प्रेगनेंसी टेस्ट कराया तो मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव था और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और हैरान हुई कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। फिर 27 अगस्त 2022 को परमेश्वर ने मुझे हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। जो बहनें आज भी दुष्ट आत्माओं से जकड़ी हुई है, जिनके पास बेबी नहीं है, मैं आज उन बहनों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप प्रभु में आए और प्रभु के वचनों पे विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो आज भी ऐसा ही है, वो कल भी ऐसे, वो युगन युग ऐसा ही परमेश्वर है। जैसे परमेश्वर ने मुझे दुष्ट आत्माओं के अटैक से आजाद किया और बेबी की गवाही के साथ खड़ा किया, वैसे ही परमेश्वर आपको भी दुष्ट आत्माओं से आजाद करेगा और बेबी की गवाही के साथ ब्लेस करेगा। अब मैं और मेरा परिवार बेबी के साथ बहुत खुश है और हम बहुत खुश रहते हैं अपने परिवार में। इस बड़ी आशीष के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास और दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। जैसे कि बाइबल में यिर्मयाह 17 उसके 14 में लिखा है, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। ये वचन इनके जीवन में पूरा हुआ। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्यामुल राय और ये मेरी बहन है, इनका नाम है हेप्सिबा राय। हम दोनों जबलपुर एमपी के रहने वाले हैं। आज मैं अपने जीवन की एक गवाही देने जा रहा हूँ, जैसे किस प्रकार प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया और मुझे एक नया जीवन दिया। जुलाई 2022 को मैं स्टेशन से भोपाल की ओर जा रहा था। रात का समय था, प्लेटफॉर्म आने ही वाला था, तो मैं गेट के पास आ गया देखने की कौन से प्लेटफॉर्म में लग रही है ट्रेन। अचानक से ट्रेन ने जर्क लिया और मेरा पैर डिसबैलेंस हुआ और मैं फिसल के बाहर तरफ गिर गया और मेरे सर में कुछ टकराया और मैं तुरंत ही बेहोश हो गया। इसके बाद मेरा भाई रात भर रेलवे ट्रैक में पड़ा रहा और लगातार इसका वहीं पे ब्लड लॉस होता रहा और इसके बाद किसी व्यक्ति ने इसकी मदद की और एम्बुलेंस को कॉल किया और एम्बुलेंस वाले ने इसको हॉस्पिटल तक लेके गया और वहाँ से मुझे एम्बुलेंस वाले ने कॉल किया कि आपके भाई की कंडीशन क्रिटिकल है और लगातार उसको कान से और नाक से खून आ रहा है और उसके सर में भी चोट आई है। तो फिर मैंने पूछा कि मतलब आपको नंबर मेरा कहाँ से मिला, तो उन्होंने बताया कि मतलब इसको जगह जगह कर नंबर पूछा है गया है, तो इसने आपका नंबर बताया, इसलिए आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो आप जल्द से जल्द आ जाओ। ये खबर सुनते ही मैं बहुत घबरा गई थी और चिंता में आ गई थी और रोने लगी और मैं सोच में पड़ गई कि अब क्या होगा, इसकी जान बचेगी कि नहीं बचेगी, क्योंकि जैसा एम्बुलेंस वाले ने मुझे बताया कि आपके भाई की कंडीशन क्रिटिकल है और वो बेहोश है, तो मैं ये सुनकर ही बहुत घबरा गई थी कि उसके सर में चोट आई है। फिर डॉक्टर का कॉल आया और उन्होंने हमें बोला कि जितना जल्दी हो सके आप हॉस्पिटल आ जाइए 1 घंटे के अंदर, क्योंकि आपके पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है और उसकी डेथ भी हो सकती है। उसके ब्रेन में बहुत से क्लॉट्स आ गए हैं जिसके लिए इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर मैंने फैमिली को, मम्मी पापा को कॉल लगाया और उन्हें बताया कि शानू का एक्सीडेंट हो गया है, वो ट्रेन से गिर गया है। तो मम्मी पापा भी बहुत घबरा गए और वो रोने लग गए। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भोपाल से काफ़ी दूर रहते हैं और जो मेरा ससुराल है बीना, वो भोपाल से थोड़ा पास में है, तो हम जल्द से जल्द भोपाल पहुंच गए। फिर हम भोपाल के उस ट्रॉमा हॉस्पिटल में पहुंचे जो भोपाल का सबसे अच्छा और बड़ा हॉस्पिटल है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट के ही केस आते हैं। फिर जब हम हॉस्पिटल पहुंचे, जो डॉक्टर ने सोनोग्राफी ली थी वो रिपोर्ट हमें पूरी बताई कि पेशेंट के ब्रेन में बहुत सारे क्लॉट्स आए हैं और जो इसका स्कल की एक टेम्पोरल बोन होती है वो फ्रैक्चर हो गई है, जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके साथ डॉक्टर ने ये भी बोल दिया था कि ऑपरेशन के दौरान पेशेंट की जान भी जा सकती है, क्योंकि इसका ब्लड बहुत लॉस हो चुका है, ये रात भर वहाँ पड़ा रहा है।
तो कुछ कह नहीं सकते। और मैं खुद मेडिकल फील्ड से हूँ और मैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यही मैंने देखा है, ज़्यादातर केसेस जितने भी कि पेशेंट की इसमें डेथ हो जाती है और पेशेंट यदि बच भी गया तो उसके साथ कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस जुड़ा ही रहता है। पेशेंट या तो कोमा में चला जाएगा या फिर पैरालाइज हो जाएगा या फिर उसे फिट आएंगे, ऐसी कंडीशंस बनी ही रहती है। और फिर डॉक्टर ने हमसे साइन करवाया है पेपर पर कि ऑपरेशन के दौरान यदि आपके पेशेंट की डेथ भी हो जाती है तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब पेरेंट्स को बताया कि मतलब ऐसा ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ऑपरेशन के बाद इसकी डेथ भी हो सकती है, तो हम लोग सब टेंशन में आ गए और मम्मी पापा तो रोने ही लगे थे कि अब क्या होगा, हम लोग के पास एक ही बेटा है। मेरे भाई के सर में बहुत गहरी चोट लगी थी और लगातार कान और नाक से खून बहे जा रहा था और बहुत सारा ब्लड लॉस हो चुका था। फिर डॉक्टर ने इसका ऑपरेशन कर दिया, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी इसकी बॉडी में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं था, इसे कोई भी सुध-बुध नहीं थी और ये कोमा में था। फिर भी हमारा भरोसा जो है वो परमेश्वर पर था और हम लगातार खामरा चर्च से जुड़े हुए थे। और जैसे हमें ये खबर मिली थी मेरे भाई के हादसे के बारे में, उसके तुरंत बाद ही मेरे हस्बैंड ने A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन जीमेल पर उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया था, जहां पर परमेश्वर के दास ऑनलाइन मरीजों के लिए प्रेयर करते हैं। फिर जुलाई 2022 को परमेश्वर के दास ने मेरे भाई के लिए जूम ऐप के द्वारा ले हैंड प्रेयर की। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर का रूह तुम्हें टच करे, तुम जहां भी हो। राइट नाउ बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। तेरी कॉन्शियसनेस वापिस आए इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा ये बरकत आप सबकी भी है। प्रेयर के तुरंत बाद मेरे भाई की रिकवरी होने लगी और उसके तुरंत बाद इसको होश आया। और जब इसकी रिपोर्ट्स फिर से हुई तो डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ रिपोर्ट्स में नॉर्मल है और कोई भी कॉम्प्लिकेशंस जो पहले बताए गए थे उसमें से कोई भी कॉम्प्लिकेशंस मेरे भाई के में नहीं थे। और जो भी क्लॉट्स थे वो कोई भी क्लॉट्स जो ब्रेन में थे वो नहीं थे। और प्रेयर के तुरंत बाद जब इसकी रिकवरी देखकर वहाँ के जितने भी पेशेंट के अटेंडर्स थे और डॉक्टर्स थे, स्टाफ थे, सब बहुत खुश हो रहे थे और सब अचंभित हो रहे थे कि इतनी जल्दी रिकवरी कैसे कर गया। और जितने भी वहाँ के अटेंडर्स थे वो मम्मी के पास आकर बोल रहे थे कि हमारे भी पेशेंट के लिए आप प्रेयर करवाइए। और वहाँ के डॉक्टर्स और स्टाफ ने, मैनेजमेंट ने इसके नए जन्म के लिए केक काटा। अभी मेरा भाई बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल नॉर्मल है। ये सब कुछ अपने आप से करता है, खुद खाना खाता है, अपना काम खुद से करता है, ना इसे फिट्स आते हैं, ना ही इसकी कोई याददाश्त में समस्या है। जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और क्रिटिकल कंडीशन में हैं उन्हें हम यही कहना चाहते हैं और उनके परिवार को हम यही कहना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि वही जीवित खुदा है और वही चंगा करने की सामर्थ रखते हैं। मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने मेरे भाई को चंगा किया वो आपको भी चंगा करेंगे, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है। खाना खा रहा हूँ, घर के सारे काम कर रहा हूँ, अपनी गाड़ी भी चला लेता हूँ, पढ़ लिख भी पा रहा हूँ। अभी मैं, मेरा परिवार, दादा दादी सब खुश हैं। इस बड़ी चंगाई के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के दास और दासी का भी धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ हर एक संग। मेरे बादशाह